أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اخرجنا من الظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. عزیزان محترم، حضرت سید الشہداء علیہ الاف و تحیت و ثنا کے ایام غم ماہ سفر المظفر کے ایام، حضرت سید الشہداء کے چہلم کی مناسبت سے ایام قریب ہیں. آپ تمام مؤمنین کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں. دعاگو ہیں کہ خداوند متعال آپ تمام مؤمنین کی عزاداریاں اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. جو مؤمنین سید الشہداء علیہ الاف و تحیت و ثنا کی زیارت کے لیے عازم سفر ہیں، دعاگو ہیں خداوند متعال آپ تمام مؤمنین کے سفر کو خیر و عافیت سے پایہ تکمیل تک پہنچائے. وہ مؤمنین جو سفر کے خواہش مند ہیں لیکن مختلف مشکلات کے باعث اس سفر پر نہیں جا سکتے، ان کے لیے بھی دعاگو ہیں کہ خداوند متعال مکان بعید سے ان کی زیارت کو قبول فرمائے اور ان کے دل میں حضرت سید الشہداء کی زیارت کی اس تڑپ کا، اس خواہش کا انہیں اجر عظیم عطا فرمائے. عزیزان محترم، ہماری آپ کے ساتھ گفتگو کافی عرصے کے بعد، تقریباً 9 ماہ کے وقفے کے بعد، عرفان اسلامی کی تلاش کے موضوع پر آغاز ہوئی. دوبارہ بیان ہوا کہ اس کتاب میں ٹوٹل 5 فصلیں ہیں اور ہم نے 4 فصلیں بطور کامل بیان کر دی تھیں. 5ویں فصل کے موضوعات پر گفتگو جاری تھی. نہایت اہم موضوعات تھے. مختلف وجوہات کی بنیاد پر ہم اس گفتگو کو جاری نہیں رکھ سکے. کوشش یہ ہے کہ ہم انہیں مکمل کریں اور پھر اگلے موضوع، چونکہ ہم بہت سے موضوع ایسے شروع کر چکے ہیں جو اس وقت نامکمل ہیں اور کافی وقت سے تعطل کا شکار ہیں، کوشش ہے کہ اپنے ادھورے موضوعات کو کمپلیٹ کیا جائے. عزیزان محترم، جادو اور کرامت، اس موضوع پر گفتگو ہماری جاری تھی کہ اولیاء الہی سے خداوند متعال کرامت کو جاری کرتا ہے اور بعض افراد جادو کے نتیجے میں بھی ایسے کام کرتے ہیں جو بطور معمول انسان ان کاموں کو انجام دینے سے عاجز اور ناتواں ہوتا ہے. پس اگر ہم کسی انسان سے کسی ایسے کام کو مشاہدہ کریں کہ جسے انجام دینے کی توانائی دوسرے افراد میں موجود نہ ہو، پس یہ غیر معمولی کام جو شخص انجام دے رہا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ غیر معمولی کام کرامت ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ جو معمولی کام شخص انجام دے رہا ہے وہ الہی تعلیمات کے خلاف ہو، پھر بھی کیا کرامت شمار ہوگا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ شخص کہ جو جادوگر ہے، کیا وہ اللہ کا ولی ہے؟ چونکہ بالاخره وہ ایک ایسا کام انجام دے رہا ہے جسے عام نارمل افراد اپنی زندگی میں انجام نہیں دے سکتے ہیں. اولیاء الہی بھی اپنی زندگی میں ایسے غیر معمولی کام انجام دیتے ہیں، لہٰذا وہ اللہ کے ولی ہیں. پس ان کا کام ان کی ولایت کی دلیل ہے جو انہوں نے اللہ تبارک و تعالی سے حاصل کی ہے. تصرفات کرنا، آپ مختلف شخصیات، مختلف اولیاء کی زندگی میں ایسے غیر معمولی امور کو مشاہدہ کریں گے جنہیں ہم کرامت کہتے ہیں کہ عام افراد ان امور کو انجام دینے پر قادر نہیں ہوتے ہیں. مثلا کسی مریض کو کوئی انجیر دے دی، کوئی کھجور دے دی، کوئی ایسی چیز کھلا دی اس کو جس سے وہ مریض جو لا علاج مریض تھا، جس کو تمام اطباء نے جو ہے وہ اس کے علاج کو غیر ممکن قرار دیا تھا، اسے ایک کھجور دینے سے، شیخ حسن علی اصفہانی یا ایک انجیر دینے سے اسے جو ہے وہ تندرست کر دیتے ہیں اور اسے بالکل صحیح سالم قرار دے دیتے ہیں. پس یہ کیا چیز ہے؟ اور اس طرف سے ہم ایسے مرتاض ہندوؤں کے وجود میں ایسے غیر معمولی کاموں کو بھی مشاہدہ کرتے ہیں کہ جو انہوں نے ریاضت کے نتیجے میں ان غیر معمولی کاموں تک وہ پہنچے ہیں. یا بعض افراد کے جو
काली विद्या का इस्तेमाल करते हैं और जादू टोना और इस किस्म की चीज़ों में वो मसरूफ़ अमल रहते हैं, ये अफराद भी अपनी ज़िंदगी में ऐसे गैर मामूली काम अंजाम देते हैं जिन्हें हम लोग अंजाम नहीं दे सकते। यानी अगर आप मुझसे किसी ऐसी चीज़ का तकाजा करें तो मैं उस पर कादिर नहीं हूँ। अपने महल्ले के उलमा से अगर आप किसी ऐसी गैर नॉर्मल चीज़ का तकाजा करें तो वो भी उस पर कादिर नहीं है। मसलन आप किसी लाइलाज मरीज़ को मेरे सामने ले आएं और कहें कि मौलाना साहब इस पर फूंक मारें ताकि इसको शिफा हो जाए, तो मैं अगर सारा दिन बैठकर भी उस पर फूंक मारता रहूँगा तो मेरी फूंक में वो तासीर नहीं है, मेरे दम में वो तासीर नहीं है। क्यों? चूँकि मेरा दम मसीहाई नहीं है, मैं खुदावंद मुताल का वो मुकर्रब बंदा नहीं हूँ जो अल्लाह तबारक व तआला के औलियाए इलाही होते हैं। उनका दम दमे मसीहाई होता है, वो एक फूंक मारते हैं जिससे वो मरीज़ शिफायाब हो जाता है। आप मेरे पास किसी मरीज़ को लेकर आएंगे तो ऐसी तासीर आप मुशाहिदा नहीं करेंगे, और अगर कभी किसी ने मुशाहिदा कर भी ली तो वो बिइज़्निल्लाह खुदावंद मुताल ने ऐसा चाहा होगा कि हमारी दुआ से या हमारी किसी ऐसी अमल से जो है वो तासीर ईजाद हो जाए, वगरना हम लोग सरापा तकसीर हैं, हमारे वजूद में ऐसी कोई तवानाई मौजूद नहीं है। लेकिन औलियाए इलाही जिनमें दमे मसीहाई मौजूद है, जो इस तरह की शिफा अता करते हैं, वो अल्लाह के वली हैं। और उस तरफ से वो अफराद के जो जादूगर हैं, वो अफराद जो मुर्ताज़ हैं, हिंदू हैं, गैर मुस्लिम हैं, उनके वजूद में भी ऐसी खुसूसियात मौजूद हैं कि जिनके तोफ़ैल वो ऐसे कामों को अंजाम देते हैं जिन्हें आम नॉर्मल अफराद अंजाम देने पर कुदरत, ताकत, तवानाई नहीं रखते हैं। तो यहाँ निहायत अहम सवाल आयतुल्लाह मिसबाह यज़दी इस तमाम मुकद्दमे के साथ जो मैं आपकी खिदमत में बयान कर चुका हूँ, इस मुकद्दमे के मद्देनज़र आयतुल्लाह मिसबाह यज़दी ये बयान करना चाह रहे हैं कि देखो अजीज़ों, मुसलमानों, मुमिनों, सैर व सुलूक के ख्वाहिशमंद अफराद मुतवज्जे हो जाएं कि जादू और है, करामत और चीज़ है। आप कहीं इन दोनों को आपस में मिक्सअप न कर दें। बस अगर कोई जादूगर आपको नजर आता है, कोई मुर्ताज आपको नजर आता है और वो जादू के नतीजे में कोई ऐसे मुआमलात अंजाम देता है, कोई ऐसे खारिकुल-आदा काम अंजाम देता है जिसे हम लोग आम तौर पर अपनी जिंदगी में अंजाम देने पर कादिर नहीं होते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो जादूगर अल्लाह का वली है, वो मुर्ताज अल्लाह का वली है, या उस जादूगर पर और उस मुर्ताज पर अल्लाह तबारक व तआला की एक खास इनायत है। अल्लाह तबारक व तआला ने उसे दमे मसीहाई अता कर दिया है, अल्लाह तबारक व तआला ने उसके ऊपर ऐसी खास इनायत कर दी है कि जिस इनायत के तुफैल वो ऐसे गैर मामूली काम जो है वो अपनी ज़िंदगी में अंजाम दे रहा है। बस ये आयतुल्लाह मिसबाह ने एक मुकद्दमा ईजाद किया, एक मौजू को जो है वो बयान किया। सबसे पहले इस मौजू पर अलबत्ता यहाँ मैं बयान करता चलूँ कि आयतुल्लाह मिसबाह ने इस तफसील के साथ, जैसे मैंने आपकी खिदमत में इस मुकद्दमे को बयान किया है, इस तफसील के साथ इस मौजू को उन्होंने जो है वो बयान नहीं किया, और ना ही वो तफसील जो हमारा मतलूब है, यानी बाकायदा इस जादू के मौजू को अगर तफसील से बयान करते तो बहुत ही अच्छा था। लेकिन आयतुल्लाह मिसबाह यज़दी चूँकि इरफान इस्लामी को मुतारिफ करवाना चाह रहे हैं और इरफान इस्लामी के मौजू पर गुफ्तगू कर रहे हैं, तो वो चीज़ें जो मौजू से मुर्तबित नहीं हैं, जो गुफ्तगू के ज़ैल में जो है वो इंसान के जहन में आ जाती हैं, जिसे कहते हैं कि अल कलाम या जो रोल कलाम बात से बात निकलती है, तो ऐसे में ये मौजू ज़ेर बहस आ चुका। चूँकि बयान किया कि ये दरवाक़े किताब जिसे हम आपकी खिदमत में बयान कर रहे हैं, दर जुस्तजू इरफान इस्लामी, ये दरवाक़े आयतुल्लाह मिसबाह यज़दी के वो दुरूस हैं जो उन्होंने हौज़ाए इल्मिया में उलमाए किराम के सामने पेश किए हैं। लिहाजा बात से बात निकलती है, एक ये मौजू आ गया। चूँकि बहस हमने करामत के मौजू पर करना थी, और करामत एक ऐसा फेल है कि जिस पर आम लोग कुदरत नहीं रखते हैं, गैर मामूली सा एक फेल है जो अल्लाह तबारक व तआला की एक ख़ास इनायत होती है अपने मुकर्रब बंदों के ऊपर। तो दूसरी तरफ हम बाद ऐसे जादूगरों को मुशाहिदा करते हैं, ऐसे मुर्ताज़ों को मुशाहिदा करते हैं कि उनकी ज़िंदगी में भी ऐसे गैर मामूली काम मौजूद हैं। तो सवाल ये उभरता है कि क्या ये दोनों आपस में हम रुतबा हैं, हम पल्ला हैं, अल्लाह के हुजूर तकर्रुब में इनका एक जैसा मकाम है, एक जैसा रुतबा है, एक जैसा मर्तबा है? तो यहाँ वाज़ेह तौर पर आयतुल्लाह मिसबाह बयान कर रहे हैं कि जादू अलग है, रियाजत और मुर्ताज़ों वाली रियाजत अलग है, और करामत एक अलग चीज़ है। लिहाजा सूरह बकरा की आयत नंबर 102 का
सहारा लेते हैं, जहां खुदावंद मुताल इरशाद फरमा रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वत्तबउ मा ततलु शयातीन अला मुल्क सुलेमान, यानी हजरत सुलेमान के दौरे हुकूमत में शयातीन जो कुछ पढ़ा करते थे, यहूदी उन चीज़ों की पैरवी करने लग गए कि जो शयातीन की तालीमात का हिस्सा थे। वमा कफरु सुलेमानो वलाकिन शयातीन कफरु, सुलेमान ने हरगिज कुफ्र इख्तियार नहीं किया है, बल्कि शैतान थे वो गुरूह जो कुफ्र इख्तियार किया करते थे। यहाँ दरवा के इस जो कलिमात हैं इनके अंदर एक राज छुपा है। राज ये है कि यहूदी ये तसव्वुर करते थे कि सुलेमान अल्लाह के पैगंबर नहीं है, बल्कि सुलेमान एक जादूगर हैं और वो जादू के जरिए से मुख्तलिफ कामों को अंजाम देते हैं। तो खुदावंद मुताल इस नजरिए की नफी कर रहा है जिसे यहूदियों ने इख्तियार किया और इरशाद फरमा रहा है, वमा कफरू सुलेमान, यानी सुलेमान हरगिज काफिर नहीं थे, वलाकिन शयातीन काफरू, लेकिन शयातीन जो थे वो काफिर थे। बस यहाँ से मालूम हुआ कि उनका ये जो नजरिया था कि सुलेमान अल्लाह के नबी नहीं है, जादू के जरिए से वो तसर्रुफ करते हैं, तो अल्लाह फरमा रहा है कि ये जादू के जरिए से अमल अंजाम देने वाले अफराद दरवाके काफिर हैं, ये शयातीन हैं जो कुफ्र इख्तियार करते हैं। बस यहाँ से ये बात वाज़ेह हो जाती है कि जादू करने वाला शख्स काफिर भी है और जादू करने वाला शख्स दरवाके शैतान है कि जो कुफ्र इख्तियार किए हुए है अल्लाह तबारक व तआला पर। अब इस शैतान का काम क्या था? युअल्लिमून अन्नास सिहरा, ये लोगों को सहर की तालीम दिया करते थे, जादू की तालीम दिया करते थे। वमा उनज़िला अलल मलकैन बेबाबिला हारूता व मारूता, और वो यहूदी कि जो इस इल्म सहर की पैरवी करने लगे थे, वो दरवाके बाबिल, जो दो फरिश्ते बाबिल में आए थे, हारूत और मारूत, और जो कुछ भी उन दो फरिश्तों पर अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल कर दिया था, यहाँ बयान किया जा रहा है वमा उनज़िला अलल मलकैन बेबाबिल हारूता व मारूता, और हमने नाजिल नहीं किया इन दो फरिश्तों के ऊपर, वमा युअल्लिमान मिन अहदिन, और ये दो फरिश्ते हरगिज किसी को ऐसी तालीम नहीं देते थे, हत्ता यकूला, बल्कि ये दो फरिश्ते ये भी कहा करते थे कि इन्नमा नहनु फितनतुन फला तकफुर, कि हम जो कुछ बयान कर रहे हैं, ये जो जादू का तोड़ हम कर रहे हैं, ये दरवाके एक आजमाइश है। यहाँ फितने से मुराद आजमाइश इलाही है, और तुम हरगिज कुफ्र इख्तियार न कर लेना, यानी जो तुम्हारे मुआशरे में जादू इस वक्त मौजूद है, हम उस जादू का तोड़ बयान कर रहे हैं। इस तोड़ को तुम जो है वो आजमाइश तसव्वुर करो, इस तोड़ को तुम खुद एक जादू करार देना मत शुरू कर देना। फयतअल्लमूना मिनहुमा, और जो अल्लाह तबारक व तआला ने इन हारूत और मारूत पर नाजिल किया वो उससे तालीम देते थे। मा युफर्रिकूना बिही बैनल मरए व ज़ौजे, वो चीज कि जिससे मर्द और औरत के दरमियान जुदाई डाली जाए, उस जुदाई को कैसे खत्म करना है। दरवाके ये दो फरिश्ते उस माशरे में राइज जादू को खत्म करने के लिए और उस जादू का तोड़ बयान करने के लिए आए थे। वमा हुम बिज़ारीन मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, और वो दरवाके किसी को जरर पहुंचा नहीं सकते मगर अल्लाह तबारक व तआला के इज़्न से। कौन? शयातीन, यानी शयातीन जो कुछ भी जादू कर रहे हैं दरवाके उसके पीछे भी कुदरत और ताकत अल्लाह तबारक व तआला की है। वो ये तसव्वुर कर रहे हैं कि ये हमारा जादू है जो तासीर ईजाद कर रहा है, नहीं, ये हरगिज किसी को जरर पहुंचा नहीं सकते मगर इसके पीछे भी अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत और ताकत मौजूद है। अज़ीज़ान मोहतरम, यहाँ तफसीरी एतबार से आपकी खिदमत में अगर बयान करूं तो सुलेमान अबरानी ज़बान का एक लफ्ज़ है, और यहाँ हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 4 बेटे थे। उन 4 बेटों में से एक बेटे का नाम सुलेमान था कि जिन्होंने तकरीबन हज़रत ईसा मसीह
अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मीलाद से 990 साल पहले उनकी रिसालत थी और अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें रिसालत पर मबऊस किया था। और जहाँ तक इस आयत में बाबिल का कलिमा इस्तेमाल हुआ है तो अजीज़ान मोहतरम, ज़माने कदीम में यानी 3000 साल पहले हज़रत मसीह की मीलाद से पहले बाबिल दरवाक़े इराक़ के अंदर दारुल खिलाफा और दारुल हुकूमत हुआ करता था। और इस बाबिल के अंदर कलीदानी कौम आबाद थी कि जो 3000 साल पहले मीलाद मसीह से पहले इस इलाके में आबाद थी। और ये बाबिल उस ज़माने में तहज़ीब व तमद्दुन का मरकज़ था और उस ज़माने में यह बाबिल जादू का भी मरकज़ था। और दुनिया में खुराफात जो फैली हैं वो इसी बाबिल से उस ज़माने में खुराफात का आगाज़ हुआ है। और अहादीस से ये बात वाज़े होती है कि हज़रत सुलेमान के अहद में जादू अपने उरूज पर था और आम था उस ज़माने में। तो खुदावंद मुताल ने 2 फरिश्तों को जो है जिनका नाम हारूत और मारूत है, खुदावंद मुताल ने इन 2 फरिश्तों को भेजा था। हज़रत सुलेमान ने जब मुशाहिदा किया कि जादू बिल्कुल आम हो चुका है तो वो तमाम औराक, वो तमाम कागजात, वो तमाम दस्तावेजात, वो तमाम तहरीरें जिन पर ये जादू तहरीर था उन्हें हज़रत सुलेमान ने ज़ब्त कर लिया। अब जब उन्हें ज़ब्त कर लिया तो हज़रत सुलेमान की जो इंतकाल है इस दुनिया से, उसके बाद कुछ चीज़ों को बाज़ लोगों ने हासिल कर लिया और हासिल करने के बाद उन्हें दोबारा मंजर आम पर ले आए और इस तरह से यहूदियों ने वही का दामन छोड़कर इन शैतानी रास्तों को अपनाना शुरू कर दिया। लिहाजा यहूदियों के फ़िरक़ों में से बाज़ फ़िरक़े ऐसे थे कि जो दरवाके चूँकि उस ज़माने में जादू आम था, उनका यह नज़रिया था कि सुलेमान भी नबी नहीं है, वो रिसालत पर मबऊस नहीं है, बल्कि एक जादूगर है और वो जादू के ज़रिए से जो है वो सहर करते हैं, जादूगरी करते हैं और इस अंदाज में वो लोगों को अपने गिर्द यानी जिन और इंस को मुसख्खर करते हैं, अपने गिर्द जमा करते हैं। जबकि खुदावंद मुताल इस आयत में इस नज़रिए की नफी फरमा रहा है और इरशाद फरमा रहा है वमा कफर सुलेमान, कि सुलेमान ने हरगिज़ ये कुफ्र नहीं इख्तियार किया। यानी ये जादू का जो आप इल्ज़ाम सुलेमान पर लगा रहे हैं ये सुलेमान के शायान शान है ही नहीं, पर सुलेमान ने जादू इख्तियार नहीं किया है। और ये हारूत और मारूत भी अजीज़ान मोहतरम अबरी ज़बान का जो है वो कलिमात है और इन्हें खुदावंद मुताल ने इंसानी सूरत में सहर के इब्ताल के लिए और बातिल करने के लिए भेजा था, ताकि वो लोगों के दरमियान जो ये जादू राइज हो चुका है इस जादू का खात्मा करें और दरवाके वो गैर मामूली काम कि जो ये जादू के जरिए से अंजाम दे रहे हैं उस गैर मामूली काम का तोड़ करामत के जरिए से जो है वो अवाम के सामने बयान करें। बस उस जमाने में जादू और करामत के दरमियान फर्क ईजाद करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हारूत और मारूत को भेजा। लिहाजा यहाँ ये यहूदी उनसे सूए इस्तिफादा करना चाहते थे, अपने मज़मूम मकासिद के लिए उनकी तालीमात को सीखना चाहते थे और उन मज़मूम मकासिद की खातिर जो है वो जादूगरी की तरफ यहूदियों ने रुजू किया। और एक मुफस्सल तारीख है इसका, आप वहाँ मुतालिया कर सकते हैं तारीखी किताबों में, तफसीरी किताबों में, इसी आयत के ज़ैल में या इसके अलावा मुख्तलिफ मकामात पर। बस अजीज़ान मोहतरम, सवाल ये पैदा होता है कि जादू की हकीकत क्या है और किस तरह से लोग जादू को अंजाम देते हैं। जादू के मौजू पर गुफ्तगू करना ये हमारा मौजू बहस नहीं है, चूँकि हमारी गुफ्तगू इरफान इस्लामी की तलाश पर है और हम अल्लाह तबारक व तआला तक पहुँचने के रास्ते को बयान कर रहे हैं कि इंसान कैसे तहज़ीब नफ्स करके, कैसे इंसान अपनी फितरत की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए, कैसे इंसान जामियत इख्तियार करते हुए अल्लाह तबारक व तआला तक पहुँच सकता है। लिहाजा मौजू चूँकि जादू नहीं है, लेकिन इंसान जब कमाल तक पहुँचता है तो अल्लाह तबारक व तआला का वली बनने के नतीजे में उसे अल्लाह तबारक व तआला एक दमे मसीहाई अता करता है और वो बहुत सारे ऐसे कामों को अंजाम दे सकता है कि जिसे आम अफराद अपनी जिंदगी में अंजाम देने से आजिज है।
बस ये एक वाज़ेह सी हकीकत है कि जादू और चीज़ है, करामत और चीज़ है। इस फर्क को बयान करने के लिए आयतुल्लाह मिसबाह यज़दी ने इस ब्रैकेट को खोला है अपनी बहस के दरमियान, ताकि बयान करें कि आप इन चीज़ों को आपस में मिक्सअप न कर दें। लिहाजा जब ये सवाल इंसान के जहन में होता है कि जादू की हकीकत क्या है और जादूगर एक जादू को कैसे अंजाम देता है, तो आयतुल्लाह मिसबाह यज़दी यहाँ पहुँचकर वाज़े तौर पर बयान करते हैं कि भाई मैं कोई जादूगर नहीं हूँ। मैं यहाँ जो दर्स पढ़ाने के लिए बैठा हूँ तो मेरे तमाम शागिर्द जो मुखातब मेरे सामने मौजूद हैं आयतुल्लाह मिसबाह यज़दी के, वो इस बात को यकीन कर लें कि आयतुल्लाह मिसबाह यज़दी को जादूगर नहीं है और ना ही वो जादू को जानते हैं। लेकिन आयतुल्लाह मिसबाह यज़दी कह रहे हैं कि बाज़ ऐसी किताबें जादू से मुताल्लिक मौजूद हैं, मिल जाती हैं, और मैंने भी उन किताबों में से बाज़ को पढ़ा है। लेकिन किताब पढ़ने से कोई शख्स जादूगर नहीं हो जाता। इसके लिए बाकायदा मुमारसत की ज़रूरत है, तमरीन की ज़रूरत है। जैसे इंसान को एक किताब पकड़ा दी जाए जिसमें गाड़ी चलाने के तमाम जो रमूज है उसमें बयान किए गए हैं, तमाम तरीक़ेकार उसमें तहरीर है। अब एक इंसान उस किताब का मुतालिया कर लेता है, तमाम ट्रैफिक के कवानीन को वो उस किताब से पढ़ लेता है, गाड़ी का जो तमाम जो रमूज हैं कि कैसे उसका हैंडल थामना है, कैसे उसका गियर दबाना है, कैसे उसके क्लच को पकड़ना है, सब चीज़ें जो उसके गाड़ी से मुताल्लिक है। चूँकि मुझे तो गाड़ी चलानी नहीं आती है, तो जितनी चीज़ें भी गाड़ी से मुताल्लिक हैं वो उस किताब में मैंने पढ़ ली हैं। अब मुझे आप गाड़ी के पीछे बिठा दें कि भाई तुमने ये किताब पढ़ी है, इम्तहान भी पास कर लिया, अब चलाओ, तो मैं ये कहूँगा कि भाई मुझे तो ये चलानी नहीं आती है, मैंने तो सिर्फ किताब पढ़ी है। अब चलाने के लिए मुझे एक मास्टर की ज़रूरत है जो मेरे साथ बैठे और वो मुझे आहिस्ता आहिस्ता बताए कि भाई तुमने कैसे आगे चलना है, कैसे गाड़ी को चलाना है और कैसे इसे हरकत देना है, कैसे ब्रेक लगाना है, कैसे तुमने जो है वो ट्रैफिक के दौरान चलाना है और कैसे जब ट्रैफिक नहीं है तो तुमने चलाना है। तो तमाम रमूज मुझे वो उस्ताद सिखाएगा जो मेरे साथ बैठा है। दरवाके जब तक मेरे वजूद में वो झिझक और वो एक खौफ जो मौजूद है उसका वो खातिमा नहीं करता वो उस्ताद पास बैठकर और मुझे तमरीन नहीं करवाता, प्रैक्टिस नहीं करवाता, मुमारसत नहीं करवाता, मैं जितना भी गाड़ी के पीछे बैठ जाऊं मैं गाड़ी नहीं चला सकता। लिहाजा ऐसे में मुमारसत का होना बहुत ज़रूरी है। तो आयतुल्लाह मिसबाह ये बयान कर रहे हैं कि ठीक है जादू के मौजू पर किताबें मिल जाती हैं, मैंने भी बाज़ किताबों को पढ़ा है, लेकिन किताब पढ़ने से कोई शख्स जादूगर नहीं हो जाता। इसके लिए मुमारसत की ज़रूरत है, इसके लिए तमरीन की ज़रूरत है, प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और ये दरवाके उस शख्स के लिए है कि जो इनके पीछे जाना चाहता है, जो इनका मुतकाज़ी है, और ये अपनी एक ख़ास बहस है, एक ख़ास फील्ड है जिसका हमारे से कोई ताल्लुक नहीं है। हम इस्लामी स्टडी में और इस्लामी तालीमात में ना तो जादू को पढ़ते हैं और ना ही जादू को पढ़ाते हैं और ना ही जादू की प्रैक्टिस करवाते हैं। लिहाजा ये एक ख़ास फील्ड है, एक ख़ास फ़न है कि जो उसी ताइफे और उसी तबके से मुताल्लिक है कि जो इस फील्ड में महारत रखते हैं। बसा औकात जादू को सीखना उसे दफा करने के लिए वाजिब हो जाता है। यानी मुआशरे में अगर इसी तरह से जैसे बाबिल में उस जमाने में जादू आम हो गया था, तो ऐसे में जादू का खात्मा करने के लिए, जादू की रोकथाम करने के लिए यहाँ एक दीनी वजीफा भी आ जाता है वाजिब किफ़ाई के तौर पर कि बाज़ अफराद ऐसे उठे जो मुमारसत करें, तमरीन करें, प्रैक्टिस करें और इस जादू का तोड़ निकालें। चूँकि माशरे में यह चीज़ राइज हो चुकी है, लिहाजा किसी हद तक कहा जा सकता है कि यह जादू भी बस औकात इसका सीखना, इसकी तमरीन करना, इस पर प्रैक्टिस करना वाजिब हो सकता है। लेकिन बतौरे कत ये कहा जा सकता है कि जादू एक हकीकत है और कुरान मजीद में और रिवायात अइम्मा मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम में इस जादू का तज़किरा मौजूद है। लेकिन ये हमारी बहस से खारिज है। हम इस जादू के मौजू पर गुफ्तगू नहीं करना चाहते, हम किसी को जादूगर नहीं बनाना चाहते और ना ही हम खुद जादूगर हैं। लेकिन इस मौजू की तरफ इशारा करना मकसूद है कि बाज़ अफराद माशरे में ऐसे हैं जो मुर्ताज़ हैं, रियाजत के नतीजे में गैर मामूली काम अंजाम देते हैं। बाज़ अफराद ऐसे हैं जो काली विद्या के ज़रिए से और काली प्रैक्टिस के ज़रिए से और ऐसे गैर मामूली उमूर को अंजाम देने के, शैतानी उमूर को अंजाम देने के नतीजे में वो जादू करना सीख जाते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये जादूगर क्या अल्लाह के वली हैं? तो हरगिज़ नहीं, ये जादूगर अल्लाह के वली नहीं है।
کیا ان جادوگروں کا شمار اللہ کے مقرب بندوں میں ہوتا ہے؟ نہیں عزیزان محترم، جو شخص بھی غیر معمولی کام انجام دینے کی توانائی رکھتا ہو وہ اللہ کا مقرب بندہ نہیں ہوتا ہے، وہ اللہ کے حضور صاحب مقام و منزلت و کرامت کا مالک نہیں ہوتا ہے۔ پس جادو کسے کہتے ہیں؟ عزیزان محترم، جادو کہا جاتا ہے کہ فطرت کو کنٹرول کر لینا۔ اب جب انسان فطرت پر کنٹرول حاصل کرتا ہے تو فطری امور میں رد و بدل بھی انجام دینا ایک فطرت پر کنٹرول کرنے کا نتیجہ ہے۔ مثلا میاں اور بیوی کا آپس میں جو تعلق ہے وہ ایک فطری تعلق ہے، ان کے درمیان نکاح ہوا ہے، ان کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک الفت کو، ایک محبت کو ایجاد کرنا ہے، لہٰذا ان دونوں کے دل ایک دوسرے کے قریب ہونا یہ فطری تقاضوں کے مطابق ہے۔ اب وہ شخص جو جادوگر ہے وہ فطرت پر کنٹرول کر لیتا ہے۔ اب جب فطرت پر اس نے کنٹرول کیا تو ان دو زوجین کے درمیان جو آپس میں الفت، محبت، مودت اور عقیدت کا ہونا ایک فطری امر تھا، اس جادوگر نے اس فطرت پر تسلط کرنے کے نتیجے میں ان کے دلوں کو آپس میں ایک دوسرے سے موڑ دیا، ان دونوں کے درمیان اختلاف ایجاد کر دیا۔ پس جادو ایک حقیقت ہے، واقعیت ہے، قرآن سے بھی اس جادو کی حقیقت کو بیان کیا جا سکتا ہے، روایات سے بھی بیان کیا جا سکتا ہے، اور جادو کی حقیقت یہ ہے کہ انسان فطرت پر کنٹرول کر کے فطرت میں رد و بدل ایجاد کرتا ہے۔ پس معاشرے میں کیا تمام افراد جو غیر معمولی کام انجام دے رہے ہیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ جادوگر ہیں؟ اس سوال کا جواب ہم اپنی آئندہ گفتگو میں کریں گے، چونکہ کافی تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے اور شدید گرمی کا موسم بھی ہے۔ دعا گو ہیں کہ خداوند متعال آپ تمام مؤمنین کو جادو سے اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ دعا گو ہیں کہ خداوند متعال آپ تمام مؤمنین کی زندگی میں ایسی لا ینحل مشکلات، ایسی مشکلات جن کا حل آپ کے پاس نہیں ہے، کوئی بھی بیان نہیں کر سکتا، خداوند متعال آپ کو ایسی لا ینحل مشکلات سے نجات عطا فرمائے۔ دعا گو ہیں خداوند متعال آپ کو ارضی و سماوی آسیب سے نجات عطا فرمائے۔ دعا گو ہیں خداوند متعال جن مؤمنین کی زندگی میں مشکلات ہیں، اللہ ان کی مشکلات کا خاتمہ فرمائے بحق امام علی ابن موسیٰ رضا۔ دعا گو ہیں کہ دنیا جہان میں جہاں کہیں مؤمنین آباد ہیں، اللہ انہیں آباد و شاد رکھے۔ جو مؤمنین اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے پریشان ہیں، اللہ ان کے بچوں کو اچھی تعلیم عطا فرمائے۔ جو مؤمنین اپنے بچوں کے روزگار کے لیے پریشان ہیں، اللہ ان کے بچوں کو اچھا روزگار عطا فرمائے۔ جو مومنین اپنے بچوں کی شادی کے لیے پریشان ہیں، اللہ ان کے بچوں کی اچھی جگہ پر شادی عطا فرمائے اور ان کو اچھا کف عطا فرمائے، چاہے وہ بچے ہیں چاہے وہ بچیاں ہیں۔ دعا گو ہیں کہ وہ مؤمنین جو اپنے بچوں کے ہاں اولاد کے لیے پریشان ہیں، خداوند متعال ان کے بچوں کو صاحب اولاد قرار دے۔ دعا گو ہیں وہ مؤمنین جو اپنے بچوں کے عاقبت بخیری کے لیے اخلاقیات کے حوالے سے پریشان ہیں، خداوند متعال ان کے بچوں کو اچھا اخلاق عطا فرمائے، والدین کا ان کو فرمان بردار قرار دے، ان کی عاقبت بخیر فرمائے۔ دعا گو ہیں کہ تمام مؤمنین جو ایام عزا میں سید الشہداء کی عزاداری میں مصروف ہے، خداوند متعال ان کی عزاداری کو قبول و مقبول فرمائے۔ دعا گو ہیں کہ خداوند متعال حضرت منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر صاحب الزمان مہدی موعود کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں حضرت کے اصحاب و اعوان و انصار کی فہرست میں شمار فرمائے۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔